Hello everyone, I hope you all are doing well and good. My name is Ravi Preet and I welcome you all to the Legal Regime series. In our last video, we talked about the breakdown of the Indian Evidence Act. That is, what is to be proved, relevant facts and pattern issues, who will prove it, the party who gets the benefit from proving that fact, and how it will be proved by oral evidences or documentary evidences. Now let's move on to the purpose of Indian Evidence Act. किसी भी एक्ट का पर्पस जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जब उसके सेक्शंस को और प्रोविजंस को इंटरप्रेट करते हैं तो हमें उस एक्ट का पर्पस ध्यान में रखते हुए ही उसकी सेक्शंस का इंटरप्रिटेशन करना होता है. So let's start. The purpose of Indian Evidence Act is to find out the truth of the fact that are asserted by the parties because the decision of the case depends on the facts asserted. किसी भी केस का डिसीजन उसके फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा फैक्ट सच है, कौन सा नहीं. Indian Evidence Act essentially does the balancing of interest between the parties. दो पार्टीज के बीच में बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट तभी हो सकता है जब हमें फैक्ट की सच्चाई पता हो, क्योंकि जब तक हम उस फैक्ट की ट्रूथफुलनेस स्टैब्लिश नहीं करेंगे तब तक हम सही डिसीजन नहीं दे पाएंगे और वो बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट में काउंट नहीं होगा. इंडियन एविडेंस एक्ट हमें मेथड्स भी बताता है जिसके थ्रू हम फैक्ट की ट्रूथफुलनेस को स्टैब्लिश कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, examination in chief, cross-examination, re-examination, etc. etc. Ultimately, Indian Evidence Act is a quest towards truthfulness. मतलब Indian Evidence Act सत्यवादिता की खोज है, सच्चाई की खोज है, क्योंकि जब तक हमें सच नहीं पता होगा तब तक हम सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे to do the justice. Therefore, the Indian Evidence Act's ultimate purpose is to do justice by finding the truth. Now let's move on to the rule of purposive interpretation. उद्देश्यपूर्ण व्याख्या. कभी भी किसी एक्ट के सेक्शन में या प्रोविजन में कोई भी एम्बिग्विटी होती है या डाउट होता है तो हम रूल ऑफ पर्पसिव इंटरप्रिटेशन यूज करते हैं. We use this purposive interpretation to deal with that ambiguity or doubt. जब भी हम उस डाउट को क्लियर कर रहे हों या हम इंटरप्रेट कर रहे हों तो हमें हमेशा उस एक्ट के पर्पस को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो भी सेक्शंस और प्रोविजंस बनाए जाते हैं उस एक्ट के पर्पस को ध्यान में रख के ही बनाए जाते हैं. So whenever there is a doubt or ambiguity, we should go for the rule of purposive interpretation. Now let's move on to constitutional essence. हम जब भी कोई भी आंसर लिखते हैं, चाहे वो लॉ स्कूल्स में हो या हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो अगर हम उस आंसर की स्टार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस या उस एक्ट के पर्पस से करते हैं तो हमारा आंसर बहुत ही इफेक्टिव निकल के आता है, जो कि हमारे मार्क्स में ऐड ऑन होता है. There is no law that violates the basic essence of the Constitution, that are equity, justice, good conscience, as they are the binding principles of the Constitution. Well-written Constitution gives oneness and strength. कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाके रूल करे. इंडियन एविडेंस एक्ट में सभी चीजें लॉजिकल रीजनिंग एंड कनेक्टिविटी पे बेस्ड हैं. The fact that all the provisions of the Indian Evidence Act is based on equity, justice, good conscience, reasonableness and non-arbitrariness are the essential principles of the basic structure of the Indian Constitution. This is how we can relate Constitution and Indian Evidence Act. This is the constitutional essence of the Indian Evidence Act. Now the question arises whether the Indian Constitution is substantive or procedural law. We can say that Indian Evidence Act is essentially procedural, but partly it is substantive because of the estoppel part. Therefore, Indian Evidence Act is partly procedural and partly substantive law. Now let's move on to facts. Facts are of two types: physical facts and psychological facts. This is given by Bentham. If we'll see the definition of facts that is given in the Bare Act, it starts with facts means and includes. यहाँ means का मतलब
मतलब ये है कि जो डेफिनेशन है फैक्ट की दैट इज एग्जॉस्टिव एंड नथिंग मोर कैन बी एडेड टू इट। हम इसमें और चीजें ऐड नहीं कर सकते। बट फैक्ट की डेफिनेशन में मीन्स के साथ साथ वर्ड इंक्लूड भी यूज किया गया है, जिसका मतलब है इंक्लूसिव। दिस डेफिनेशन इज इंक्लूसिव। इसमें हम बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। Facts means and includes first anything, state of things or relation of things capable of being perceived by the senses. ये physical fact है। Second, any mental condition of which a person is conscious. ये psychological fact है। Therefore, fact will be of two types: physical facts and psychological facts. For example, this definition is non-exhaustive. सेक्शन 3 में जो लिस्ट दी गई है दैट इज ऑन द डिवीजन ऑफ फैक्ट्स बिटवीन मेंटल फैक्ट्स एंड फिजिकल फैक्ट्स, दैट लिस्ट इज एग्जॉस्टिव इन नेचर एंड द वर्ड मीन्स रिफर्स टू दैट डिवीजन, बट विदिन देमसेल्व्स देयर कैन बी सेवरल काइंड्स ऑफ फिजिकल फैक्ट्स एंड मेंटल फैक्ट्स, एंड ऑन दीज काइंड ऑफ फैक्ट्स द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव एंड द वर्ड इंक्लूड्स इज रेफर्ड टू दिस पार्ट. Now let's move on to what does capable of being perceived by the senses means. Anything का मतलब state of things, relation of things that are capable of being perceived by the senses. का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हम देख सके, सुन सके, स्मेल कर सके, छू सके physical senses के थ्रू, that is a physical fact. Now let's come to mental fact. मेंटल फैक्ट का मतलब कुछ भी जो आपके माइंड में हो, जो हम देख नहीं सकते, जो हम छू नहीं सकते, जैसे कि किसी का इंटेंशन, वो हम छू नहीं सकते बट वो हम समझ सकते हैं बाय एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन। किसी भी व्यक्ति का जो दिमाग होता है, माइंड, वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जिसके बारे में हम अवेयर होते हैं, दैट इज मेंटल फैक्ट्स। सबकॉन्शियस माइंड जैसे कि जो चीज़ें हैं बट हम उनके बारे में अवेयर नहीं हैं, तो उनका कुछ यूज़ नहीं होता है। सो यहाँ पे जो मेंटल फैक्ट्स के बारे में बात हो रही है वो कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। मेंटल कंडीशंस 1000 तरीके की हो सकती हैं, पर जो मेंटल कंडीशंस के बारे में हम अवेयर होते हैं वही मेंटल फैक्ट्स होते हैं हमारे। मतलब किसी भी व्यक्ति के दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जिनके बारे में वो अवेयर है, वही हमारे मेंटल फैक्ट्स होते हैं। चीज़ें जो हमारे कॉन्शियस माइंड में होती हैं वही हमारे फिजिकल एक्शंस को गाइड करती हैं, क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में हम अवेयर ही नहीं होते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं, वो हमारे फिजिकल एक्शंस को गाइड नहीं कर सकती। कुछ भी जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है वो फैक्ट नहीं होता है फॉर द पर्पस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए किल्ड बी, ये फिजिकल फैक्ट है। ए हैड अ इंटेंशन टू किल बी, ये मेंटल फैक्ट है। इंटेंशन हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? जैसे कि ए एम्स गन टू द चेस्ट ऑफ बी, ये शो करता है कि ए का इंटेंशन बी को मारने का था। अगर ए का इंटेंशन बी को मारने का नहीं होता तो ए उसके पैरों पे या हाथों की तरफ भी गन पॉइंट कर सकता था। मेंटल फैक्ट्स आर रेड थ्रू फिजिकल फैक्ट्स। जो मेंटल फैक्ट्स हैं वो हमें फिजिकल फैक्ट्स के थ्रू ही पता चलते हैं। एग्जाम्पल, नॉलेज ऑफ हैविंग द पेन in the stomach is a mental fact, but feeling that pain is a physical fact. Pain is both mental and physical fact. Facts जो होते हैं वो artificially भी बनाए जा सकते हैं, but जो circumstances होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। इसीलिए हम हमेशा fact and issue और relevant fact को जब भी connect करते हैं उसके बीच में logical reasoning होती है, जिससे कि हमें पता चलता है उन दोनों के बीच का connection और fact की सत्यवादिता। रेपुटेशन, जो कि सेक्शन 3 के इलिस्ट्रेशन ई में दी गई है। तो जब भी हम रेपुटेशन की बात करते हैं, रेपुटेशन का क्या मतलब है? रेपुटेशन मेंटल फैक्ट है कि फिजिकल फैक्ट है? रेपुटेशन हमारे माइंड में किसी के बारे में ओपिनियन होती है जो हम फॉर्म करते हैं, ये हमारे माइंड में होती है और इसके बारे में हम अवेयर होते हैं, ये हमारे कॉन्शियस माइंड में होती है। दैट मीन्स रेपुटेशन जो है वो हमारा मेंटल फैक्ट है। But the moment we express that opinion to someone else, जैसे कि मेरे बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, अगर आपने अपने किसी दोस्त को या फैमिली मेम्बर को या किसी को भी आपने बताई
तो उस टाइम वो मेंटल फैक्ट फिजिकल फैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज ऑल फॉर द डे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लीगल रूटीन सीरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें।